So, very good evening, all the participants. Today, we'll start with section 16 onwards. Now, let us see what section 16 says. 16 बोलता क्या है? And this section 16 has to be read with regulation number 3. ठीक है? So, section 16, what it says? Section 16 talks of the appointment and tenure of the IRP. Right? So, it says that the adjudicating authority shall appoint an IRP on the insolvency commencement date. And where the application, now there could be three situations. ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? एमबीएस कुमार जी, कैन यू टेल what could be the three situations when the adjudicating authority is considering the appointment of IRP? What could be the three situations? MVS Kumar ji, are you there? Yeah, I'm there. Okay. I'm just thinking. So, huh? I'm just thinking. Okay. The first situation I'll suggest to you is where the application has been moved by the financial creditor under section 7. Right? 7 and 10, sir. 7, 10. अरे एक मिनट यार, सुनो. First situation is when the application is moved under section 7. Right? So now, what could be the possible questions before the adjudicating authority in this case? Because when a financial creditor filed an application under section 7, he must have obtained the consent of the IRP in form number 2, sir. Form number 2, right? Uh, In form number 2, he gives an affidavit that okay, he is not suffering from any of the disqualifications, right? This is one of the conditions. Yes, sir. Now, suppose he attracts a disqualification afterwards. Means between the date of filing of the application and the date of acceptance. Is it possible? Yes. It is very much possible, right? Hmm. So in such a situation, the adjudicating authority will not be able to appoint such an IRP, right? Yes. So in this situation, what the adjudicating authority will do? There is an application by FC, name of IRP is there, but he is suffering from disqualifications, right? Now what the adjudicating authority will do? Ratify. Huh? Ratify the application, sir. Return it to FC and then ratify and then submit it to AA. No. Okay, sir. It will ask, actually, in the law, provision is that it will make a reference to the board and board will revert within 10 days. But Okay, sir. the real situation is that board is sharing a panel of insolvency professionals with the adjudicating authority and one of them is appointed. This is the situation. Right? Second situation, operational creditor. Right? And operational creditor में क्या situation हो सकती है? There could be two situations. Right? First situation क्या होगा? No name is given. If no name is given, adjudicating authority will ask the board and board will revert. ठीक है? Second situation, OC has already given a name. Now that name may be correct. ठीक है? So if that name is okay, the only thing they will check is whether he is suffering from any disciplinary proceeding or not. If he is not suffering, then okay, they will appoint him. But if he is suffering, then they will make a reference to the board and the board will revert within 10 days. What? 10 days, sir. Third situation, corporate debtor. Corporate debtor has moved an application. Now he has to necessarily give the name of the IRP, right? Now, the only thing the adjudicating authority will check is whether that person is suffering from any of the disabilities. And if not, then they will appoint him. Otherwise, they will make a reference to the board, right? So these are the three situations. तीनों सिचुएशन में क्या क्या चेक करना है?
सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई उसका कोई डिसिप्लिनरी केस तो नहीं चल रहा, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग नहीं है तो जो बोला है वो अपॉइंट कर देंगे, और अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो देन दे विल मेक ए रेफरेंस टू द बोर्ड, ठीक है। And नाउ sir, fourth situation is complete the examination, but availability of EFA. Then also we can opt for or appoint as a IRP. Completed the examination, awaited for EFA. Then also it will be a very much नो नो possible. नो नो नो, Okay, sir. देखो ऐसा है, अनलेस यू होल्ड ए वैलिड ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट यू Hmm. कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन आईआर, IRP. Okay. ठीक है। अवेटेड वोटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Okay. नाउ रेगुलेशन 3 टॉक्स ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज दिस एलिजिबिलिटी? who can be appointed, who cannot be appointed? So naturally, first of all, because he is dealing with the CDs, right? So naturally there should not be any conflict of interest. So first thing, when he will be considered to be independent, these are the situations. He should not be a related party, right? He should not be an employee or proprietor or partner of a firm of auditors or secretarial auditors in practice or cost auditors of the corporate debtor, of a legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate debtor amounting to 5% of the gross turnover of such a firm in the last 3 financial years, and he is eligible to be appointed as an independent director. So he will be considered independent in all these situations. Okay. Regarding independent director, they are already given in section 149, so we have to move accordingly. Regarding related party, you have to look at section 5 subsection 24. Now regarding not being an employee or proprietor or partner, it's a fact, right? So if he is an employee or proprietor or partner of a firm of auditors or secretarial auditors in practice or cost auditors of the corporate debtor. Suppose he was an auditor of the CD 10 years ago. Can he be appointed as an IRP now? Sir. है? Yes, sir. Appoint has a IP, but not a liquidator, sir. क्यों? Sir, liquidator is bar up to 10 years, sir. क्या 10 years? 10 year अरे तक भाई की आप मत बोलो, आप बोल रहे हो तो सब गड़बड़ कर रहे हो, समझ रहे हो, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। अरे सर नहीं सर। लिक्विडेटर में कहाँ 10 years का बार है? Sir, erstwhile director, if he is his 10 years back is not counted actually. हम्म, नहीं आप तो बोल रहे हैं ना कि ऑडिटर रहा है 10 years में, ऐसा कहाँ बार है? सर ऐसा तो सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। ऑफ हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ अ लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हैड ट्रांजेक्शन विद सीडी अरे वो कंट्रीब्यूटिंग। 10% है, आप 10 years बोला है आपने। एग्री सर वो सही सर, आपकी बात सही है सर। समझ रहे हो? सॉरी सर। देखो देखो हाँ सर ऐसा सॉरी। यार, आप ज्यादा मत बोलो, आप और कंफ्यूज कर देते हो दूसरे लोगों को। अनलेस यू आर हाँ श्योर सॉरी प्लीज सर। डोंट स्पीक। समझ रहे हो? हम्म। तो क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट इज दैट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो माय क्वेश्चन हियर वाज इन केस ऑफ CIRP, इफ यू हैव बीन एन ऑडिटर, MBS के आपके लिए क्वेश्चन है ये Yeah, yes. कि you were an auditor 10 years ago of the same CD which is into CIRP now, and you are an insolvency professional, can you be appointed? Yes or no? Actually, I do not know the provisions. I have not read. No, these are the provisions. Provisions are before you only. Mm-hmm. He says if Hmm. you are not an employee or proprietor or partner of a firm of auditors or secretarial auditors in practice or cost auditors of the corporate debtor in the last 3 financial years. So he's saying if you have been an auditor, secretarial auditors or cost auditors in the last 3 financial years, then you cannot be appointed.
My question is, you were an auditor 10 years ago. Now, can you be appointed? Yes, sir. Yes. Yes, it can be appointed. So, very simple question. Now, regarding this turnover from consulting firm, of a legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate debtor amounting to 5% or more of the gross turnover of such firm. Now, how to calculate this limit? This limit has to be, suppose you are a consultant, you are an insolvency professional, so you must be having a firm of your own, right? Now, it should be a legal or consulting firm. Now that firm, the legal or consulting firm, is having transactions with the CDOs, right? Suppose the turnover of your firm is say 50 crores, right? Now, if you are having transactions worth 5% of 50 crores with the CD, then you cannot be appointed, right? If you have transactions less than 5%, then you can be appointed. Clear? Hai? Suppose your turnover is 100 crores. Then if you have transactions worth 5 crores or more with the CD, then you cannot be appointed. And these are all aimed at avoiding the conflict of interest. That means you are not in close proximity to the CD of which you are being appointed as an IRP. यही basic logic है ना? Now suppose you want to replace. Suppose the COC wants to replace, then they will get it form AA signed from it, right? Instead of form 2A. And then you have to make disclosure also. An IRP or RP, as the case may be, shall make disclosures at the time of his appointment and thereafter in accordance with the code of conduct. Now, what is this disclosure requirement? This disclosure requirements is a step ahead, right? Suppose your brother is a shareholder in the company in which you are being appointed as an IRP. Then, of course, you can be appointed. There is no bar, but there is a disclosure requirement. And that disclosure requirement is given in IP regulations, in code of conduct, schedule. So within 3 days of coming to know, you may not be even aware that your brother is a shareholder. You may not, your brother may not be telling you everything, right? So there are some transactions, there are some connections which you are required to disclose within 3 days of your coming to know of this fact to the IPA, right? So this is basically regarding the eligibility criteria. Yes, sir. चलिए, तो व्हाट इट सेज, एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको पूरा. काजल जी एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, क्या है ये सेक्शन 16. हाँ जी. Yes, sir. Appointment and tenure of interim resolution professional. The adjudicating authority shall appoint an interim resolution professional on the insolvency commencement date. When the application for corporate insolvency resolution process is made by a financial creditor or the corporate debtor, as the case may be, the resolution professional as proposed respectively in the application under section 7 or section 10 shall be appointed as the interim resolution professional if no disciplinary proceedings are pending against him. When the application for corporate insolvency resolution process is made by an operational creditor and no proposal for an interim resolution professional is made, the adjudicating authority shall make a reference to the board for the recommendation of an insolvency professional who may act as an interim resolution professional. A proposal for an interim resolution professional is made under subsection 4 of section 9. The resolution professional as proposed shall be appointed as the interim resolution professional if no disciplinary proceedings are pending against him. The board shall, within 10 days of the receipt of a reference from the adjudicating authority under subsection 3, recommend the name of an insolvency professional to the adjudicating authority against whom no disciplinary proceedings are pending.
The term of the interim resolution professional shall continue till the date of appointment of the insolvency professional under section 22. So here one thing, within what period the adjudicating authority should make a reference to the board? Is this period given in this section? Sir, I am asking 14 days from the date of insolvency commencement date, but there is no such logic. I don't know sir logic of 14 days wala sir. कहाँ लिखा? The तो 14 सर days को वो करना है ना नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन सही है सुनिए। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि OC made an application, है ना? No IRP was suggested in that application. Now the adjudicating authority wants to make a reference to the board. So कितने दिन में they have to make a reference to the board? Is this period given anywhere? No Yes, sir, sir, This is but my question. 7 days, sir. कहाँ no लिखा? sir, And sir within 14 10 days sir. पूरी 14 sir. कहाँ लिखा है? Sir, there is nowhere written, but हाँ. the logic is, 3 days. Logic is if from- nothing is written then as soon as possible. ठीक है, कोई लिखा तो कोई है नहीं कि 7 days. बोर्ड के लिए लिखा है कि दे हैव टू रिवर्ट इन 10 days, बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए तो नहीं लिखा. सर ऐसा है सर, 3 डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके बाद बोर्ड को जाएगा 10 डेज, तो 14 डेज ऑटोमेटिकली विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी सर। क्या मतलब? मतलब सर 3 डेज फ्रॉम द इंश्योरेंस अरे भैया डेट। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो यार, दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो नरेंद्र जी. आप सुनो ज्यादा बोलो कम. देखो ऐसा है, अभी ओके सर, अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ आईआरपी का, तो पब्लिक अनाउंसमेंट कहां से हो गया? पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट कर दोगे क्या? सही है सर, हाँ सर। सॉरी अभी सर। आईआरपी का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट कहां से कर रहे हो आप? हाँ सर, हाँ सर। अभी तो पहले अपॉइंट करोगे, तभी तो वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा ना. क्यों काजल जी, क्या कहते हो आप? सर इसमें हर जगह तो ये दिया हुआ है कि 7 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करता है, 10 डेज में बोर्ड फिर उसको रिवर्ट करता है। नहीं, यहाँ कहाँ लिखा? सेक्शन आपके सामने लिखा कहीं? इसमें तो नहीं लिखा है सर, बाकी कहीं पे लिखा हुआ है ये। हाँ, बाकी में इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में लिखा, यहाँ नहीं लिखा. और ये लिख दिया कि भाई बोर्ड तो रिवर्ट करेगा. बोर्ड का तो लिखा है ना 10 days में रिवर्ट करेगा, हाँ हाँ सर, 10 16 को. डेज बोर्ड सर। हाँ, चलिए नाउ 17, सेक्शन 17. सेक्शन 17 पर बोलता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय द आईआरपी. नाउ पर सर आईआरपी सर हैज वो बीन. सर लास्ट क्वेश्चन सर। सर वो बोलिए. 14 डेज वाला कॉन्सेप्ट है सर, वो एमसीक्यूज में है सर। एमसीक्यूज में 14 डेज वाला है, पर उसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा है सर। लॉजिक देखो, ऐसा एमसीक्यू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है. लॉ में कुछ नहीं लिखा है. ओके सर। आपके सामने लॉ है लिखा कहीं? हाँ सर, नहीं लिखा है सर, सही तो सही बस बात है सर। खत्म. एमसीक्यू में क्या लिखा है छोड़ो ना उस बात को. ओके सर, हाँ सर। वो तो अगर 2 दिन में कर देगा तो कोई रोक थोड़े लेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो तो फौरन ओके सर। करेंगे, उसमें क्या है. और करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. समझो लॉजिक, समझो लॉजिक ये है, उसके सामने ही पैनल पड़ा हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के. हम्म, एडजुडिकेटिंग बोर्ड ने क्या किया हुआ है, अपना पैनल शेयर किया हुआ है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसी में से अपॉइंट कर देती है. छुट्टी. ये ओके सर। 7 दिन, 14 दिन, 10 दिन, किसी का प्रैक्टिकल कुछ होता ही नहीं है. ओके ऐसा नहीं कि उसको लेटर लिख रहे हैं आईबीवीआई को और आईबीवीआई लेटर का जवाब दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके सर। अब नहीं आपको सर, कि सर ये बात कहाँ लिखी है, तो ये एक्चुअली केस लॉ है एक. ओहो उसमें हो। आया कि भाई मेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग ए रेफरेंस टू द बोर्ड. तो उसमें ये कहा कि आईबीबीआई शेयरिंग ए पैनल एंड दैट शेयरिंग ऑफ पैनल इज डीम्ड टू बी ए मेकिंग ए रेफरेंस टू द बोर्ड. नाउ सेक्शन 17, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय द आईआरपी. ठीक है, नाउ आईआरपी हैज बीन अपॉइंटेड. ठीक है, नाउ यू हैव टू मैनेज द अफेयर्स. अब मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहली बात, powers of the board of directors or partners of the CD as the case may be shall stand suspended and be exercised by the IRP. Now what is suspended? Powers of the board. Whether Powers. board of directors stand suspended, yes or no? नो सर। No, only their परफेक्ट। powers stand. पावर्स। यस सर। तो एमसीए पोर्टल पे उनका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा?
रहेगा सर, यस सर, ही विल बी क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर सर, हाँ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बस सर। ये है कि सिर्फ उसकी पावर सस्पेंड हो गई। मतलब सर वो पावर साइन नहीं सस्पेंड करेगा का सर। मतलब ये है कि दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस, है ना। डिसीजन, यस सर। दे कैन नॉट चेक, दे कैन नॉट साइन चेक्स, दे कैन नॉट एक्सिक्यूट डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, ये सब। चलिए, the officers and managers of the corporate data shall report to the IRP and provide access to such documents and records of the corporate data as may be required by the IRP। क्या लिखा? ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करेंगे? आईआरपी को। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द आईआरपी। उसके आगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स क्या करेंगे? बैंकर किसकी इंस्ट्रक्शन पर काम करेंगे? आईआरपी सर। आईआर। कौन कौन से अकाउंट्स में? इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स, ठीक है, एंड फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सीडी अवेलेबल विद देम टू द आईआरपी। द आईआरपी वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ये क्या करेगा? अब जो भी काम बोर्ड करता था वो ये काम करेगा, ठीक है। इट शेल एक्ट एंड एक्सिक्यूट इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा ऑल डीड्स, रिसीट्स एंड अदर। कोई डीड साइन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई रिसीट साइन करनी है, ये करेगा, लेकिन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। तो आ जाएगा फॉर XYZ लिमिटेड आईआरपी, ठीक है। Take such actions in the manner and subject to such restrictions as may be specified by the board. Have the authority to access the electronic records of the corporate data from information utility having financial information of the corporate data. Have the authority to access the books of accounts, records and other relevant documents of the corporate data available with government authorities. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पासवर्ड लेना है, ये ले लेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ही कैन टेक, ठीक है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, accountants and such other persons as may be specified, and be responsible for complying with the requirements under any law for the time being in force on behalf of the corporate debtor. जीएसटी की रिटर्न भरनी कौन भरेगा? आईआरपी सर। आईआर। आईआरपी, यस सर। इनकम टैक्स की रिटर्न आईआरपी सर। सब आईआरपी। और सर नहीं भरेगा ना सर तो वो डीसी होगा सर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सर। हाँ, नहीं भरेगा तो पर्सनल लाइबिलिटी भी आ जाएगी। हाँ सर, सही है अब सर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ही रह गई हमारी कि रेगुलेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो रेगुलेशन नंबर 4 और पढ़ लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि आपको सेक्शन 17 के साथ क्या पढ़ना है? रेगुलेशन नंबर 4। रेगुलेशन नंबर 4 क्या है? रेगुलेशन नंबर 4 बात करता है एक्सेस टू बुक्स। तो क्या कहता है ये? विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन 17(2)(d), द आईआरपी और द आरपी एट द केस में भी मे एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, records and other relevant documents and information to the extent relevant for discharging his duties under the code of the corporate data held with depositories of securities। कंपनी का कोई डीमैट अकाउंट है, डिपॉजिटरी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, ले सकता है। प्रोफेशनल एडवाइजर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। लीगल एडवाइजर नहीं लिखा, प्रोफेशनल एडवाइजर लिखा। भाई कोई हो, वहां एम्प्लॉय तो वहां लिख दिया ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज, यहां क्या है? यहां और एक्सटेंड कर दिया उस स्कोप को, ठीक है। कोई एडवाइजर हो सकता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, अदर रजिस्ट्रीज दैट रिकॉर्ड दी ओनरशिप ऑफ एसेट्स। अब इसमें कई लोग ये पूछते हैं कि भैया एडवोकेट के पास कोई रिकॉर्ड है तो क्या वो भी ले सकते हैं? तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द एडवोकेट एंड द क्लाइंट इज ए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एडवोकेट मना कर सकता है कि भाई देखो, उसके पास भी तो, सीडी के पास भी तो अपना रिकॉर्ड होगा ना, तो वहां से रिकॉर्ड ले सकता, नहीं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले लेगा। अदर रजिस्ट्रीज दैट रिकॉर्ड दी ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ये ऐसी कौन सी रजिस्ट्रीज होती हैं जो रिकॉर्ड करती हैं ओनरशिप ऑफ एसेट्स? सब रजिस्ट्रार कचेरी। हाँ, सब सब रजिस्ट्रार सर। रजिस्ट्रार। उसके अलावा उसके अलावा सब रजिस्ट्रार के अलावा कौन सी हो सकती है? सर लोकल कॉरपोरेशन, वीएमसी। हाँ, या अपना मोटर व्हीकल एक्ट में जो अथॉरिटीज होती हैं, मान लो गाड़ी है, गाड़ी की हाँ ओनरशिप सर। कौन रजिस्टर करेगा, है ना? तो हाँ वो आरटीओ ट्रांसपोर्ट सर। अथॉरिटी होगी, है ना, इस तरह से। यस, परफेक्ट सर, परफेक्ट। मेंबर्स, प्रमोटर्स, पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, कॉन्ट्रेक्चुअल काउंटर पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है।
the personnel of the corporate debtor, its promoters, or any other person associated with the management of the corporate debtor shall provide the information within such time and in such format as sought by the IRP or the RP as the case may be. ठीक है, तो क्या होता है, सपोज यू वांट सम इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन के लिए क्या कोई फॉर्मेट है क्या? देयर इज नो सच फॉर्मेट. तो इसलिए वो क्या करेगा, वो फॉर्मेट वो खुद आईआरपी प्रोवाइड करा देगा. ठीक है, कि भाई इस फॉर्मेट में हमें दे दो. इंफॉर्मेशन किसी से मांगोगे तो मांगने का भी तरीका है ना. अगर आप एक फॉर्मेट में मांगोगे तो वो जल्दी दे देगा इंफॉर्मेशन, वरना उसने कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी फिर आप दोबारा मांगोगे उससे, है ना. तो क्या है कि ऐसा कोई, ऑल्दो नो सच फॉर्मेट हैज बीन स्पेसिफाइड, but the IRP will ask the information naturally in a format which is easier for the other person to respond. अच्छा, the creditors shall provide to the IRP or RP as the case may be the information in respect of assets and liabilities of the corporate debtor. जैसे भाई creditors कौन है? Basically they could be bankers. ठीक है. Now when the CD availed the loan, the bankers might have got done the valuation, है ना. So that valuation report may be available. Similarly, stock statement may be available, receivable statement may be available, inspection records of properties, audit report, stock audit report, title search report, technical officers report, bank account statement, and such other information which shall assist the IRP or the RP in preparing the information memorandum, getting valuation determined, and in conducting the CIRP process. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, चलिए, तो 17 हो गया. अब चलते हैं हम 18 पर. सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 बोलता है ड्यूटीज ऑफ द आईआरपी. एंड और आपको सेक्शन के अलावा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से रेगुलेशन पढ़ने हैं एमबीएस कुमार 7 जी? to 15. 7 to 15, sir. तो आपको रेगुलेशंस पढ़ने हैं 7 to 15 15. अलॉन्ग विद द सेक्शन. क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इसको? द आईआरपी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, नेमली collect all information relating to assets, finances, and operations of the corporate debtor for determining the financial position of the corporate debtor, including the information relating to business operations for the previous 2 years. ये बिजनेस ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाएगा? बिजनेस ऑपरेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन लेगा ये? भाई अभी बता दिया कि फॉर्मेट, फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मांगेगा. अब बिजनेस ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन, मैनेजर को बुलाया, आईआरपी ने बोला जी बिजनेस ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन दो. मैनेजर बोला जी फॉर्मेट दे दो, कौन से फॉर्मेट में चाहिए? आप आईआरपी हो, क्या फॉर्मेट बनाओगे? तो जितने भी क्या कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम्म. कंपनी में। वो तो सारे, वो तो कहेगा जी वो तो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स में आ ही जाएंगे. ऊपर का बताओ बिजनेस ऑपरेशंस का. The technical evaluation, sir. Technical evaluation, how the companies worked, and projections भैया given for. फॉर्मेट क्या बनाओगे? Okay, देखो sir. बिजनेस ऑपरेशंस में क्या होता है, अब आप देखोगे कि वो बिजनेस क्या कर रही है. ठीक है, Mm-hmm. प्रोडक्शन होगा, सेल हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव ए लुक एट द नेचर ऑफ बिजनेस, एंड Business, डिपेंडिंग yes. अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस उसके ऑपरेशंस देख लोगे. ऑपरेशंस को भी क्या हो सकते हैं? सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली यू विल डिवाइस फॉर्मेट्स. जैसे मान लीजिए Sir, प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में आप दे दोगे भाई डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन दे दो या प्रोडक्ट वाइज दे दो, है ना, इस तरह से. तो it बिजनेस looks like a, ऑपरेशन. sir, it's look like report, or also this will be seen available to website of CD, sir. क्या वेबसाइट है? वेबसाइट पे सर वो थोड़ा मोटा छोटा मोटा तो ब्रीफिंग विल बी अवेलेबल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. अब और मान लो वेबसाइट कोई है ही नहीं कंपनी की, फिर तो सर एमसीए पोर्टल में फाइनेंशियल्स एमसीओ और पोर्टल पे तो एमसीए, बैलेंस शीट मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? उसके बाद सर डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिट हाँ. रिपोर्ट्स, अरे थोड़ा भाई छोटा मोटा. आप बताओ ना, आप आईआरपी हो, आप आईआरपी बन गए, वो मैनेजर को बुला लिया आपने कि भाई ये देखो ये लिखा है सेक्शन 18 मैंने पढ़ा था बिजनेस ऑपरेशंस. तो बिजनेस ऑपरेशन, मैनेजर बोलता है जी मुझे तो पता नहीं क्या होते हैं बिजनेस ऑपरेशन, आप कोई फॉर्मेट बता दो. बोल सकता है ना. यस सर. तो फिर आपको भी कुछ नहीं पता, उसको भी कुछ नहीं पता, बस हो जाएगी फिर से सीआईआरपी.
No, no. मतलब we have to look the above information rather than public information. पब्लिक हाँ इंफॉर्मेशन के बिल्कुल ऊपर का बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ है ही होगा पब्लिक डोमेन। हाँ जी। सर, सेल परचेज ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे हाँ कंपनी। सेल परचेज हो सकती है, प्रोडक्शन हो वो तो सकती थ्री है। बी सर अगर जीएसटी के वो रिटर्न्स में रिसर्च एंड जाएगा। डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो रिसर्च एंड, मतलब मेरे कहने का आइडिया ये है कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ो, सब सेक्शन पढ़ो, अपना उस पर दिमाग लगाओ भाई क्या इसमें इंफॉर्मेशन मांग सकता है ना। क्योंकि आप दूसरे से मांगोगे इंफॉर्मेशन तो वो भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आप सर उसके एंगल से भी सोचो कि वो आपसे क्या काउंटर क्वेश्चन कर सकता सर है सर ना। ऐसा नहीं कोई फार्मा कंपनी हो और फॉर्मुलेशन का कुछ मांगना हो तो सर हाँ बिल्कुल इधर बिल्कुल हाँ, जो भी चीज है हाँ। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट। ये इनिशिएशन डेट क्या होती है? व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, हाँ। एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड। सर, अरे नहीं फाइलिंग भाई, नहीं नहीं। फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन सर। यस, सो एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जो वो तो कमेंसमेंट डेट होती है नरेंद्र ओके जी, सर, दैट इज द कमेंसमेंट डेट। ओके सर। सच अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड, इसलिए आप सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप बोलो कम सुनो ज्यादा, वरना दूसरे भी कंफ्यूज होंगे, आप तो कंफ्यूज हो ही हो। आप समझो प्लीज। हाँ सर। Receive and collect all the claims submitted by creditors to him pursuant to the public announcement made under section 13 and 15. So what he will do? He will receive and collate all the claims. Now what is the meaning of collating the claims? So collating means basically segregating कलेक्टिंग the claims, collecting the claims. एंड So he will वेरीफाइंग। maintain two data side by side, claims submitted and claims admitted. So there could be a situation where claim say of rupees 7 crore has been submitted, but the creditor could submit details of 5 crores only. So he will maintain both the records, claim submitted 7 crores, claims admitted 5 crores. He will ask for further information, and in case the creditor is able to give the further information, then he will announce the claim to 7 crores if he is satisfied. ठीक है, so this is the meaning of collect. He will not reject actually. कॉन्स्टिट्यूट है, वेरीफाई भी नहीं लिखा, रिसीव एंड कोलेक्ट, कॉन्स्टिट्यूट है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, मॉनिटर द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा and manage its operations until a resolution personnel is appointed by the COC. So what is written is he has to monitor the assets. Monitor means suppose some insurance is pending, so naturally he has to get it done, right? So that it doesn't remain uncovered. And he has to manage the operations until a resolution personnel is appointed by the COC. So basically, he is a stopgap arrangement till the COC takes over fully, right? So these are the duties. Now let us quickly look at, अच्छा इसके अलावा और भी है क्या, देख लेते हैं। ये हो गया, अच्छा ये और भी एक दो है। Then we'll read the regulations. File information collected with the information utility if necessary, and take control and custody of any asset over which the corporate debtor has ownership rights. So he has to take custody and control also. Assets over which the corporate debtor has ownership rights, which may be located in a foreign country. Assets that may or may not be in the possession, tangible, intangible, securities, assets subject to determination of court, and to perform such other duties as may be specified by the board. And now, what is the meaning of assets? Assets owned by a third party are not included. Assets of any Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor are not included, and such other assets as may be notified by the central government. So the central government may notify that okay, these assets will not be included. So this is a brief of the duties of the IRP. Now let us have a look at regulation number 7 to 15 also. Regulation number 7 to 15 talks of the claims by operational creditors. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कौन से फॉर्म में क्लेम भरना है अपना? बी सर। फॉर्म बी, ठीक है। बी। नाउ सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन से फॉर्म में क्लेम भरेगा अपना? डी दिल्ली। है दिल्ली दिल्ली सर, दिल्ली। डी। बी में नहीं भर सकता?
Sir, it's not an operational. For raw material purchase किया है, then this category of operational credit. बेसिकली क्या नहीं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं वेदर एन एम्प्लॉय इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, यस और नो? Yes, perfect. Yes, sir. Yes. हाँ, बट फॉर्म इज डिफरेंट. Yes, perfect. ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन और एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो फॉर्म बी. Yes, yes. ठीक है. नाउ इफ इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन से फॉर्म में भरेगा? D. फॉर्म डी. एंड इफ देर आर न्यूमरस वर्कमैन और एम्प्लॉय, सपोज ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन इज देयर, एम्प्लॉयज यूनियन इज देयर which is Form submitting the E. claim. Suppose there are E. 3,000 employees, है ना? So they will submit the claim in form E through an authorized person. D. So where there are numerous workmen or employees, an authorized representative may submit one claim with proof of for all such dues on their behalf in form E. और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन से फॉर्म में भरेंगे? फॉर्म सी. फॉर्म सी. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. होम बायर्स कौन से फॉर्म में भरेंगे? ये C. हाँ, होम बायर्स के लिए फॉर्म सी ए है. जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है उनके लिए फॉर्म सी ए. फॉर्म ए किसके लिए है? पब्लिक अनाउंसमेंट. Public announcement. और हाँ, फॉर्म बी? public announcement, sir. फॉर्म बी? B, sir. B, sir. Operational creditor, sir. Operational वेरी गुड. creditor. ठीक है. और सी? C to financial creditor, sir. और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन क्लास CA. सी ए. और वर्कमैन एम्प्लॉइज? D and E, sir. हाँ, Workman ठीक है. employee B or more class for E, sir. और अदर And क्रेडिटर्स के लिए? अदर Form क्रेडिटर भी हो सकता है ना, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है, ऑपरेशनल भी नहीं है, Form 8. तो फॉर्म एफ है. F. ठीक है. Hmm. अच्छा, नाउ सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स. ठीक है, तो क्लेम फॉर्म तो याद करने पड़ेंगे आपको. नॉर्मली दे वॉन्ट आस्क, बट इफ दे आस्क यू हैव टू रिप्लाई. ठीक है, और आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं. सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम्स. सो द आईआरपी और आरपी एज द केस में भी, भाई इन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म के बाद में अगर कोई एविडेंस चाहता है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है तो ही कैन आस्क फॉर इट. ए क्रेडिटर शेल bear the cost of proving the debt due to such creditor. Now submission of proofs of claim. ठीक है, कितने दिन में भरना है इनको? A creditor shall submit claim with proof on or before the last date mentioned in the public announcement. अच्छा, जो पब्लिक अनाउंसमेंट है उसमें लिखी होती है लास्ट डेट. जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, फॉर्म ए देखिए एक बारी, जस्ट हैव ए लुक एट फॉर्म ए. इन फॉर्म ए ये लिखा होता है क्या कितने दिन में क्लेम भरने हैं? यस सर. कितना 14 होता days, है? sir. 14. 14 डेज. ठीक है. अच्छा, 14 डेज में नहीं भरा तो क्या क्या होगा? Then, sir, delay, quantum to delay, sir. Before, up to approval of resolution plan, up to 90 ये days. यहाँ लिखा हुआ है सामने, एक बार काजल किरण जी पढ़ लीजिए प्लीज. यस सर. हाँ, प्रोवाइडेड से पढ़ लीजिए. प्रोवाइडेड क्रेडिटर 14 डेज तो क्लियर हो ही गया है ना. 14 Yes, डेज sir. के बाद अगर है तो ये प्रोवाइडेड में दिया हुआ है. Provided that a creditor who fails to submit claim with proof within the time stipulated in the public announcement may submit his claim with proof to the interim resolution professional or the resolution professional as the case may be up to the date of issue of request for resolution plan under regulation 36B or 90 days from the insolvency commencement date whichever is later. तो Provided ये further सेकंड लिमिट हो गई. पहली लिमिट हो गई 14 डेज. अगर 14 डेज में नहीं भरा तो यहां पर भर सकते हैं. कौन सी डेट हो गई? अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान और 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विच एवर इज लेटर. ठीक है. यस, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए. provided further that the creditor shall provide reasons for delay in submitting the claim beyond the period of 90 days from the insolvency commencement date. हाँ, Where the ठीक है. creditor in subsection 1 is a financial creditor under regulation 8, it shall be included in the committee from the date of admission of such claim, provided that such inclusion shall not affect the validity of any decision taken by the committee prior to such inclusion. अच्छा, अब देखो, एक तो हमारी 14 डेज हो गई, दूसरी लिमिट हमारी हो गई
up to the date of issue of request for RFRP or 90 days, whichever is later. अब सपोज वहां भी क्लेम नहीं सबमिट किया, इसके बाद भी सबमिट कर सकते हैं क्या? भाई उसने ना तो 14 डेज में सबमिट किया, ना यहां पर सबमिट किया अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर RFRP और 90 डेज, ये भी पीरियड पार हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी इधर सर हो माय सकता बाप, है क्या? हाँ सर, हाँ माय बाप, एनसीईआरटी, Yes, अप्रोच टू sir. एनसीईआरटी बिफोर रिजोल्यूशन नहीं 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 फॉर। नहीं नहीं सर, नहीं। अब आपको रेगुलेशन नंबर 13 देखना है, 13 का 1B देखना है, ठीक है? अभी आप क्या पढ़ रहे थे? 12 पढ़ रहे थे, अभी आपको 13 देखना है। 13 का 1B देखिए, काजल जी पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। ये वो सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है, आपने ना 14 डेज में भरा, ना 90 डेज में भरा, ये तीसरी सिचुएशन, पढ़िए प्लीज। In the event that claims are received after the period specified under sub-regulation 1 of Regulation 12 and up to the 7 days before the date of meeting of creditors for voting on the resolution plan or the initiation of तो liquidation देखो as the ये case. लास्ट स्टेज दे दी बिल्कुल, बारात आने वाली है घर पे, क्या दे दिया? 7 days before the date of meeting of creditors for voting on the resolution plan or initiation of liquidation. भैया पहले सुस्त था, सोया हुआ था, 14 डेज में नहीं भरा कोई बात नहीं, 90 डेज में नहीं भरा कोई बात नहीं, अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं मीटिंग को, जिस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है? वोटिंग होने वाली है ऑन रेजोल्यूशन प्लान, अब तो भर दो, ठीक है? पढ़िए प्लीज। Or the initiation of liquidation as the case may be, the interim resolution professional or resolution professional as the case may be shall verify all such claims and categorize them as acceptable or non-acceptable for collation. हाँ, अब देखो क्या हुआ है, अब इस स्टेज पर COC भी आ चुकी है ना? तो अभी क्या कर रहा है? वेरीफाई भी कर रहा है। अब यहां देखो क्या लिखा है, कोलेट नहीं लिखा, वेरीफाई लिख दिया, और फिर उनको एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल की कैटेगरीज में डाल दिया फॉर कोलेशन। अच्छा आगे पढ़िए। The interim resolution professional or resolution professional as the case may be shall intimate the creditor within 7 days of categorization thereof under sub-regulation 1B and provide reasons where such claim has been categorized as non-acceptable for collations and अब sub देखो the अभी क्या है, क्रेडिटर को भी इंफॉर्म कर देगा इफ इट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन एक्सेप्टेबल, ठीक है? यस। put up the claims categorized as acceptable under sub-regulation 1B and collated by him to the committee in its next meeting for its recommendation for inclusion in the list of creditors and its treatment in the resolution plan if any, and submit such claims before the adjudicating authority for condonation of delay and adjudication wherever applicable. अब देखो कंडोनेशन की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी? इसी के ऊपर डाल दी, भैया तुम ही सबमिट करो। IRP को बोला कि तुम ही सबमिट करो कंडोनेशन ऑफ डिले भी, ठीक है? तो ये थर्ड सिचुएशन हो गई, क्लियर है? यस सर। ये 3 सिचुएशन। चलिए तो ये वाला भी हो गया हमारा। अच्छा एक बार 14 15 और पढ़ लेते हैं, ये 13 तो हमने पढ़ ही लिया था, 15 तक है ना इसके। 14 में डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या कह रहा है कि भाई बेस्ट अगर मान एस्टिमेट्स। लीजिए इफ एनी क्लेम इज नॉट प्रिसाइज, तो वो क्या करेगा? ही विल मेक बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है? द IRP और RP of the case may be shall revise the amount of claim including the estimates as may be practicable when he comes across additional information that in foreign currency जो होगा they shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the insolvency commencement date। और official exchange rate क्या है? that is a reference rate published by RBI or derived from such reference, ठीक है? ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 70। तो MBS 18। कुमार जी अब क्लियर है? MBS कुमार जी आर यू देयर? Yes, I'm there. I'm there. Clear, clear. Very much clear. क्लियर है ना? सो नाउ Yes, yes. नाउ सेक्शन 18।
18 हो गया हमारा. Hmm. नाउ 19 क्या बोलता है? 19 19.2 sir. बोलता है कि पर्सनल टू Cooperate. एक्सटेंड कोऑपरेशन टू IRP because board is not there, IRP is all in all, so naturally everybody has to extend him cooperation. Personnel of the CD, promoters, any other person associated with the management. Now where any personnel of the corporate data, its promoter or any other person required to assist or cooperate with the IRP does not do so, then you will make an application to adjudicating It- authority. Now, suppose an auditor is not cooperating, then what you will do? You asked for certain information from the previous auditor. ठीक है, आपने क्या किया? You went to MCA website, you downloaded the balance sheet of the CD, and in balance sheet name of the auditor was appearing, and you got in touch with him on mail, right? But that auditor is not cooperating. Then what you will do? So first of all, we'll ask from him Right. that And we will maintain sufficient documentation that, okay, we have made efforts, not only once, but more than once, right? Because whenever we will approach the adjudicating authority will ask us whether you have made sufficient efforts, right? So this much we have to see. Now section 20. सर 19.2 का कोई टाइम लिमिट है सर? 19.2 का कोऑपरेशन कभी टाइम भी जा देखो सकता ऐसा है? है ना, क्या देखो, टाइम लिमिट तो लिख ही दिया ना इसके अंदर. नहीं ड्यूरिंग लिखी है सर. सीआईआरपी चल रही है ना. एट एनी सीआईआरपी स्टेज में वी किसी भी कैन. स्टेज पर हो सकता है. जब सीआईआरपी खत्म हो गई तो ये भी खत्म हो गया. ओके सर. जब तक अभी क्या पढ़ रहे हो आप सीआईआरपी पढ़ रहे हो ना, हम्म. तो जब तक सीआईआरपी चलेगी तब तक ये चलेगा. ओके सर. नाउ 20, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द सीडी एज ए गोइंग कंसर्न. सर. सेक्शन 20 क्या बोलता है कि यू हैव टू कीप इट एज ए गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न में क्या है? बेसिकली गोइंग कंसर्न में भाई रिसोर्सेज क्या है? व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द सीडी? ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मैन पावर है. सो ही कैन अपॉइंट accountants, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स. टर्मिनेट भी कर सकता है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको हटा भी सकते हैं, नए भी अपॉइंट कर सकते हैं. He can enter into contracts or he can review the contracts also. Suppose some contracts need to be amended, so he can amend those contracts. He can amend or modify the contracts. Suppose the company is having financial trouble, so he can raise interim finance also, right? Now, in case of interim finance, the problem comes that the assets of the CD are already encumbered, right? So now what will happen? Suppose all the assets of the CD are encumbered and you are an IRP and you want to raise the interim finance. So now how you will do it? Kajal ji? So, yes, sir. First of all, we'll see that how much amount is left. If twice the amount is available, then we'll leave twice of the amount, and rest we can on the rest of it we can raise the interim finance, sir. Right. Now, I'll put a question before you. Suppose the loan amount of existing creditors is 100 crores, right? And the value of the property is 500 crores. So now what you mean to say is that we will leave 200 crores for them, and on the balance 300 crores, we can raise Interim. interim finance. My question is, for raising this finance, whether any consent is required from the existing creditors, yes or no? For raising this 300 crores. Yes, sir. Consent of COs is required if Yes. the value of The property word is written is no prior consent. It doesn't say no consent is required. Okay? Now there could be two situations. First situation is that some of the property is unencumbered, then there is no issue. कुछ प्रॉपर्टी एनकम्बर्ड है, कुछ अनएनकम्बर्ड है, ऐसा भी हो सकता है. सो ऑन अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी यू कैन डू एनकम्बरेंस एंड यू कैन रेज द फाइनेंस.
Second is all the property is encumbered. Then that question of twice will come. Okay. And in that case also, the wording uses no prior consent is required. Consent is required because naturally, by property is already mortgaged to them. By property का क्या है? Suppose property is 500 crores. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिटी इज 500 करोड़, लोन अमाउंट रेज्ड इज 100 करोड़. अब प्रॉपर्टी को डिवाइड तो करके नहीं करते ना, वो तो पूरी प्रॉपर्टी का इनकम्बरेंस दे देते हैं नॉर्मली. तो वो ये कह रहा है भाई ट्वाइस द अमाउंट यू लीव इट फॉर देम, है ना. एंड व्हाट इज द लॉजिक कि भाई इवन इफ देयर इज डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देन आल्सो इट इज नॉट अफेक्टेड, राइट. बट इन दैट केस आल्सो कंसेंट इज रिक्वायर्ड, नो प्रायर कंसेंट इज. तो वी हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन द वर्ड प्रायर. ठीक है. To issue instructions to personnel of the corporate debtor as may be necessary for keeping the corporate debtor as a going concern, to take all such actions as are necessary to keep the corporate debtor as a going concern. So he has to keep it as a going concern, right? He has to make every endeavor to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage the operations of the corporate debtor as a going concern. Now section 21. Section 21 talks of the committee of creditors. ठीक है, क्या बोलता है? The IRP shall, after collation of all claims received against the corporate debtor and determination of the financial position of the corporate debtor, constitute a committee of creditors. So he will collate all the claims and determine the financial position of the corporate debtor, and then he will constitute a committee of creditors. The committee of creditors shall comprise all financial creditors of the corporate debtor, provided that a financial creditor or the authorized representative of the financial creditor referred to in subsection 6 or subsection 6A or subsection 5 of section 24, if it is a related party, shall not have any right of representation, participation or voting in a meeting of the committee of creditors, right? Provided further that the first proviso shall not apply to a financial creditor regulated by a financial sector regulator, provided it is a related party solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares. So let us take an example, but it should be done prior to the insolvency commencement date. So there is a financial entity which is regulated by a financial sector regulator, right? There is a financial creditor, say a banker. Okay. Now that bank is regulated by the RBI naturally. And that banker was having, say, convertible debentures. And those convertible debentures were converted into equity shares prior to the insolvency commencement date. And by virtue of holding those equity shares, this banker became a related party. So for that purpose, it will not be considered as a related party and it will still find a place in the COC. This is the meaning, right? If it is solely on account of this reason, substitution of debt into equity shares or instruments convertible, clear है बात? Yes, sir. चलिए. So no related parties will enter the COC. ठीक है. Now, subject to subsection 6 and 6A, there could be various situations. ध्यान से समझना, आज 21 ही करेंगे. 21 में क्या है? देखो ऐसा है कि there could be various situations. Number 1 situation, there is a banker. ठीक है, banker है, directly he will enter the COC. Now suppose there is a consortium funding where 2 or more financial creditors as part of the consortium or agreement. Now in case of consortium agreement होता क्या है कि वो एक बैंकर को ऑथराइज कर देते हैं कि he will be the lead banker and he will take decisions on behalf of the consortium. ठीक है. Perfect. Now the point here is that if there is any such arrangement, whether all the financial creditors, all the bankers, suppose there are 4 bankers, right? Now there is a consortium funding by those 4 banks, and those 4 banks have given a mandate to one of the bankers that okay, you are the lead banker and you will do all the things on our behalf.
Now the point is whether all the four bankers they can come into the COC or only the lead bank can come. This is the first question. All of them, sir. Right, very correct. So that arrangement does not work here. So it says each such financial creditor shall be part of the committee of creditors and their voting share shall be determined on the basis of the financial debt owed to them. This is one. बिल्कुल clear है, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं है sir. इसमें. No, sir. Now, where any person is a financial creditor as well as an operational creditor. Second situation. Both. क्या है? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है. तो नेचुरली ही विल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेट. और जितना फाइनेंशियल डेट है उसके बेसिस पे ही विल एंटर द सीओसी. ठीक है, सिंपल है. Yes, perfect. थर्ड सिचुएशन where the operational creditor, now there was an OC and he has assigned his debt to financial creditor. Assignment of debt is permitted. So the assignee or the transferee shall be considered as an operational creditor to the extent of such assignment or legal transfer. So there is a supplier of goods. Now he has assigned his debt to a banker. कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, sir. Yes. तो ये नहीं है कि अगर उसने असाइनमेंट बैंक के फेवर में कर दिया तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा. नहीं, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहेगा. ठीक है. अदरवाइज तो सारे ही ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है सब अपना डेट बैंक को साइन कर दें तो दे विल एंटर, बैकडोर एंट्री हो जाएगी ना फिर तो. तो इसीलिए क्या है, वो कहता है कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर ही रहोगे. अगर आप कौवे हो तो ये नहीं मोर का पंख लगा लिया तो मोर बन गए, कौवे ही रहोगे. Yes, sir. चलिए, where the terms of the financial debt extended as a part of consortium arrangement or syndicated facility provide for a single trustee or agent to act for all financial creditors. अब क्या बोल रहे हैं? देयर इज ए कंसोर्टियम अरेंजमेंट या सिंडिकेटेड फैसिलिटी है, उसमें क्या लिखा है कि भाई एक सिंगल ट्रस्टी होगा या एजेंट होगा. ठीक. तो वो क्या कहता है कि ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर में ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ in the committee of creditors to the extent of his voting share. Sir. Represent himself in the committee of creditors to the extent of his voting share. तो एक सेकंड सिचुएशन आ गई. सेकंड सिचुएशन क्या आ गई? जो कंसोर्टियम में इन्होंने कहा भाई सिंगल ट्रस्टी ही होगा या एजेंट होगा, तो उसमें रहेगा तो वो सिंगल ट्रस्टी, मीटिंग में सिंगल ट्रस्टी ही आएगा. लेकिन जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं वो उसको बता देंगे भाई हाउ ही हैज टू बिहेव इन द मीटिंग. मतलब Yes. उनके बिहाफ पे वोटिंग कैसे करनी है. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. देयर इज ए कंसोर्टियम अरेंजमेंट और सिंडिकेटेड फैसिलिटी. ठीक है. दैट कंसोर्टियम फंडिंग इज डन बाय 4 बैंकर्स, 4 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड देयर इज ए सिंगल ट्रस्टी. ठीक है. सो ईच ऑफ देम विल ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. यहां पर क्या है, हर एक आदमी अपना अपना ट्रस्टी नहीं ला रहा, उसी ट्रस्टी को बता रहे हैं कि भाई आपको कैसे वोट करना है. ठीक है, ये भी हो सकता है. बात तो देखो बेसिकली क्या है, सीओसी में करना क्या है, सीओसी में कोई रोटी खाने तो जाना नहीं है, वहां तो वोट करना है. अब वोट करने के लिए ये बता देगा उसको भैया कैसे वोट करना. ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करना. अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट हिज ओन कॉस्ट to represent himself in the committee of creditors to the extent of his voting share and exercise his right to vote to the extent of his voting share with one or more financial creditors jointly or separately. ठीक है. तो ये पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया. 6 का 3, 6 के 3 में क्या क्या सिचुएशंस दे दी इन्होंने. इनमें सिचुएशन दे दी कि इंडिविजुअल बैंकर है, इंडिविजुअल बैंकर दे विल एंटर द सीओसी, कोई दिक्कत नहीं है. कंसोर्टियम है, हर एक आदमी अपना आ सकता है. अगर सिंगल ट्रस्टी है, सिंगल ट्रस्टी को भी बता देंगे कि हाउ ही विल वोट. वंस एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑलवेज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर. ठीक है, इतनी सी बात है. यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को.
Sir, doubt is कि sir fees payable to trustee as per section 3 will be a part of CIRP cost, sir. Agree ना sir? नहीं 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 नहीं। Okay, sir. But then it will be bear by a financial creditor. हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही Okay. बिहेव करेगा। Okay, sir. Yes, sir. वो Okay. तो उनके ठीक है sir. टर्म्स ऑफ कंसोर्टियम मैनेजमेंट में लिखा होगा ना, क्या उसके हिसाब से चलेगा। वो भी लिखा Okay, हुआ sir. है, बाद में लिखा हुआ है, Okay, sir. लेकिन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट। Okay, sir. अच्छा, सेकंड सिचुएशन, रेजगारी है। यहां पर क्या बात कर रहा है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की। सपोज दे हैव इशूड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स, ऐसा भी हो सकता है ना। ऊपर तो क्या है, मोटे मोटे लोन है। अब यहां पर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, डिपॉजिट इशू, डिपॉजिट लिए हो कंपनी ने या डिबेंचर्स इशू किए। तो उस केस में क्या होगा, वेयर द फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स एंड द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट। जैसे डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, देयर इज ए प्रोविजन एज पर सेबी कि भाई अगर 500 डिबेंचर होल्डर्स हैं तो दे हैव टू अपॉइंट ए डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये नहीं कि हर एक डिबेंचर होल्डर अपना एजेंट लाएगा उसको मीटिंग में, नहीं, वही जो ट्रस्टी है या एजेंट है ही विल एक्ट एज एआर फॉर ऑल दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, एक ही आ जाएगा उसमें। सेकेंड सिचुएशन, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है। तो अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में क्या होगा, ये यहां एआर अपॉइंट होगा, जो पब्लिक अनाउंसमेंट में भी जिसका नाम आता है। सिर्फ यही वाला जो है एआर है, इसकी ही जो कॉस्टिंग है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इससे ऊपर जितनी भी राम कहानियां थी, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी है, सपोज डिबेंचर ट्रस्टी को कोई फीस देनी है तो वो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, बैंकर्स जो कंसोर्टियम वाले हैं उन्होंने अपने कोई एजेंट को फीस दी है, वो सब उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ So ये where is it, इन केस sir? ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, यही वाली जो फीस है विच इज पेबल टू एआर, दैट ओनली इज पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। सर ये कहाँ लिखा है सर, ऐसा कुछ कहाँ पे, कोई इज देयर एनी रेफरेंस फॉर दैट? आई थिंक इट विल बी अ रूल सर, रूल। ओके सर। अरे लिखा हुआ भाई, यहीं लिखा है, अभी रुको आएगा, इसी में है, 6B में लिखा है, नीचे लिखा है, ओके सर। is represented by a guardian, executor or administrator. Such a person shall act as AR on behalf of such financial creditors. There could be a case of a minor, there could be case of a dead person, है ना, there could be case of a lunatic person. तो उस केस में गार्जियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है, तो ही विल एक्ट एज AR। ठीक है, and such authorized representative under clause A or B or C shall attend the meetings of the COC and vote on behalf of each financial creditor to the extent of his voting share। परफेक्ट। अब जो बात कह रहे थे आप रिमनरेशन वाली, ये 6B में ओह, आ गई। 6B सही है में सर। क्या बोला, द हम्म। रिमनरेशन पेबल टू AR। हम्म। अब A, B और C तीन तरह के हमने देखे। A और C में तो क्या होगा, आपको क्या देखना है, टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट। जैसे मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं या एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, उस केस में तो क्या होगा, जो उनकी टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट है या रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी क्या है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में जो है इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। हम्म। यस सर, चलिए, परफेक्ट। द बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ वोटिंग and the determining of the voting share in respect of financial debts covered under subsection 6 and 6A. Save as otherwise provided in this code, all decisions of the COC shall be taken by a vote of not less than 51% of voting share. तो कहता है कि भाई अगर अदरवाइज नहीं लिखा तो 51% मिनिमम, बाकी कहीं 66 भी है, कहीं 90 भी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट where a corporate debtor does not have any financial creditors, the committee of creditors shall be constituted and shall comprise of such persons to exercise such functions in such manner as may be specified। अब इसके बारे में कहता है भाई, आप रेगुलेशंस में देख लो। ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं या सारे ही रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, हम्म। तो उसके लिए आपको 18(1) क्या जाना है, आपको 18(1). रेगुलेशन देख लेना है। हम्म। ये है रेगुलेशन 16, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर।
रेगुलेशन 16 क्या बोलता है? सीधी सी बात है, अगर कोई फाइनेंशियल डेट है ही नहीं या सारे रिलेटेड पार्टीज हैं, तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्लस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड प्लस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहां पर एक सवाल पूछ लेता है वो, क्या पूछता है कि भाई यहां पर भी रिलेटेड पार्टी की कॉन्सेप्ट चलेगी क्या, या यहां पर नहीं देखना है आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में? देखना है सर। यहां भी देखना है, वेरी गुड, यहां भी देखना है। क्योंकि क्या कहां लिखा, वो ये लिख दिया इन्होंने कि एक कमेटी, यहां जो इसका फोर्थ पॉइंट है, a committee formed under this regulation and its members shall have the same rights, powers, duties and obligations as a committee comprising financial creditors and its members as the case में भी। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर में जो राम कहानी लिखी है, वो यहां पर भी वही राइट्स, वही पावर्स, वही ड्यूटीज, वही ऑब्लिगेशंस होंगे। ठीक है, चलिए अब दोबारा चलते हैं हम 21 पर ही। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड ऑल डिसीज, ये हो ही गया, नॉट लेस देन 51%। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द आरपी टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआर। भाई सीओसी भी तो पूछ सकती है ना इन्फॉर्मेशन, तो सीओसी आरपी से पूछ सकती है, और आरपी को कितने दिन के अंदर देनी है? विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days ऑफ 7 days. सच रिक्वेस्ट। Yes. Perfect, sir. ठीक है, With नाउ no 20 specified fee, sir. Sir, it will be FOC, sir, with a declaration of confidentiality. 22 सेक्शन Okay, sir. 22 क्या बोलता है? सर, मेरे को अपॉइंटमेंट ऑफ RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेगुलेशन 70। The first meeting of the COC shall be held within 7 days of the constitution of the committee of creditors। ठीक है, तो पहली मीटिंग आपको करनी है कितने दिन में? विद इन 7 7 days days of the of constitution of the committee of creditors। और कमेटी कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट करनी है? कमेटी कमेटी कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट करनी है? क्योंकि आपको 14 days तो मिल गए फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स पब्लिक अनाउंसमेंट से। ठीक है, उसके बाद में 7 days वेरिफिकेशन के लिए मिले आपको, 7 days मिले ना, हम्म और उसके बाद में टू यहां पर 7 टू days के डेज अंदर, हाँ 2 days फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट सर। हाँ 2 days फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, वेरी गुड। 7 days फॉर हाँ फर्स्ट मीटिंग। हाँ 30 days सर टू। हाँ, तो आपको फर्स्ट मीटिंग करनी है विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। द कमिटी ऑफ, अच्छा पहला ही डिसीजन क्या होगा? ये बहुत ज्यादा बोल रहा था आईआरपी, पहले इसी को सरकाओ, वो कहे इसको सही है रखना ही नहीं सर, भाई। सही है ठीक सर। है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे इन द फर्स्ट मीटिंग बाय ए majority vote of not less than 66% of the voting share of the financial creditors either resolve to appoint the IRP as RP or to replace the IRP by another। ठीक है, या तो उसी को अपॉइंट कर देंगे, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो जाएगा, पहले उसका नाम आईआरपी था, अब उसका नाम हो गया आरपी, हैप्पी। या फिर रिप्लेस कर। अब मान लीजिए कंटिन्यू करना चाहें, तो कंटिन्यू से भी क्या है कि उससे रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में लेंगे? अब डबल है सर। डबल, डबल है। ठीक है, और इट शेल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन टू द आईआरपी, द सीडी एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये बता देंगे कि भैया, क्योंकि अभी उसको तो पता नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि आपने इसको आरपी बना दिया है ना, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी ये इंफॉर्मेशन देंगे। और टू रिप्लेस द आईआरपी it shall file an application before the adjudicating authority for the appointment of proposed RP along with written consent।
अगर उसको हटाना चाहते हैं तो सीओसी एक एप्लीकेशन मूव करेगी एडजुडिकेटिंग Yes. अथॉरिटी। अच्छा, ये जो सीओसी एप्लीकेशन मूव करेगी इसके लिए कोई फॉर्मेट है क्या? एप्लीकेशन देना होता है सर, सीओसी करती है, इसमें हाँ आरपी नहीं। हाँ, इनमें कोई अलग से फॉर्म, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है ना। तो प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन जाती है इस तरह से। The adjudicating authority shall forward the name of the RP proposed to the board for its confirmation and shall make such appointment after confirmation by the board. Board. ठीक है। Where the board does not confirm, adjudicating authority ने बोर्ड से पूछा, बोर्ड ने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है। तो क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी कि भैया तुम ही काम करते रहो जब तक कोई नया अपॉइंट नहीं होता। मतलब ये सीट वेकेंट नहीं हो सकती, हम्म है ना। तो ये हो हम्म गया हमारा रेगुलेशन नंबर 20, सेक्शन 22। इसके साथ में रेगुलेशन 17 भी पढ़ लेते हैं क्विकली। रेगुलेशन 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी? द आईआरपी shall file a report certifying constitution of the committee within 2 days of the verification of claims। ठीक है, मतलब 14 डेज फॉर क्लेम सबमिशन, 7 डेज वेरिफिकेशन, 2 डेज के अंदर रिपोर्ट, 23 डेज हो गए। The committee and members of the committee shall discharge functions and exercise powers under the code and these regulations in respect of CIRP in compliance with the guidelines as may be issued by the board। ठीक है, इसके ऊपर भी कंडीशंस लगा दी। जो कमेटी है और जो मेंबर हैं उनके भी बता दिए कि भाई उनको कैसे काम करना है। ठीक है। The IRP shall hold the first meeting of the committee within 7 days of filing the report। तो 14 + 7 + 2 + 7, 30 डेज हो गए। अच्छा, मान लीजिए आरपी की अपॉइंटमेंट डिले हो जाए तो आईआरपी काम करता रहेगा। आईआरपी shall perform the functions of the RP from the 40th day of the insolvency commencement date till the resolution personnel is appointed under section 20। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 23। 22 हो गया हमारा। हम्म 23। 23 बोलता है रेजोल्यूशन पर्सनल टू कंडक्ट CIRP subject to section 27। The RP shall conduct the entire process, CIRP process, and manage the operations during the CIRP period, provided that the resolution personnel shall continue to manage the operations of the corporate debtor after the expiry। अब मान लीजिए CIRP प्रोसेस एंड हो गया। ठीक है, अभी कोई अप्रूवल हुआ ही नहीं, तो उस सिचुएशन में भी क्या करेगा? क्या कहता है? ही शैल कंटिन्यू टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ऐसा नहीं कि वो घर चला जाएगा, नहीं। जब तक या तो अप्रूवल हो जाए या रिजेक्शन हो जाए, कुछ हो जाना चाहिए। या तो ऑर्डर हो जाए अप्रूविंग द रेजोल्यूशन पर्सनल या अपॉइंटिंग ए लिक्विडेटर, तब तक इसको काम करते रहना है। द रेजोल्यूशन पर्सनल shall exercise powers and perform duties as are vested or conferred on the IRP under this chapter। In case of any appointment of a RP under subsection 4 of section 22, the IRP shall provide all the information documents। ठीक है, तो अगर IRP से RP चेंज हो रहा है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग्स कैसे होनी है? मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग में दो चार बातें। पहली बात कि मीटिंग में आएगा कौन कौन। हमने ये बता दिया सीओसी कैसे बनेगी। ठीक है, सीओसी में कौन कौन आ रहे हैं? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। लेकिन मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो सीओसी में नहीं है। ठीक है, उनको कहते हैं पार्टिसिपेंट। वो वोट नहीं करते। जैसे जो सस्पेंडेड बोर्ड है, सस्पेंडेड बोर्ड भी मीटिंग में आएगा। अच्छा, मान लीजिए दो डायरेक्टर हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्टर, बोथ द डायरेक्टर्स हैव गिवन लोन टू द कंपनी। हो सकता है। हम्म। यस सर। अब
चलो उसको बाद में देखेंगे, हाँ जी, अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे उसको। सेक्शन 24, मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे मीट इन पर्सन और बाय सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, दे कैन मीट इन पर्सन या वर्चुअली भी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। कौन मीटिंग कंडक्ट करेगा? आरपी कंडक्ट करेगा। किस किस को नोटिस जाएगा? मेंबर्स ऑफ द सीओसी, ठीक है, तो किसको नोटिस जा रहा है? मेंबर्स ऑफ द सीओसी इंक्लूडिंग एआर, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़े ना एआर, हम्म। यस सर। कंसोर्टियम, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर वगैरह सबको जाएगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड और पार्टनर्स ऑफ द सीडी है द केस में भी। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स or their representatives if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the debt, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो वो ये कह रहा है कि भाई उनमें से एक आप मीटिंग में बुला लो, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, द डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अच्छा, एक कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, 4 में से एक आएगा या चारों आएंगे? चारों आएंगे सर। चारों आएंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स पार्टनर्स पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। As referred to in subsection 3, may attend the meetings of committee of creditors but shall not have any right to vote in such meetings, ठीक है। Provided that the absence of any such director, partner or representative of operational creditors as the case may be shall not invalidate proceedings of such meeting। अब इनको इनविटेशन तो मिला, ये बोले हम जाके करेंगे क्या? हम वहां बोल सकते नहीं, वोट दे नहीं सकते, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? वो मीटिंग में नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे जो मीटिंग के जो प्रोसीडिंग्स है दे शैल नॉट बी वैलिड, इनवैलिड, ठीक है। अच्छा, अब सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6, 6A एंड 6B ऑफ सेक्शन 21, एनी क्रेडिटर हु इज ए मेंबर ऑफ द सीओसी may appoint an insolvency professional other than the RP to represent such creditor in a meeting of the committee of creditors। हमने सेक्शन 21 का 6A और 6B पढ़ लिया, कंसोर्टियम, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई भी जो मेंबर कोई भी है वो क्या कर सकता है? किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। या तो वो खुद आ जाए, मान लो बैंकर है, एक बैंकर है, या तो वो खुद आ जाएगा या फिर किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकता है, और फीस जो है वो खुद बियर करे। ओके सर। ईच क्रेडिटर, और जो भी उसका वोट शेयर है उसके हिसाब से वोटिंग करेगा, ठीक है। अब मीटिंग्स कैसे कैसे होनी है वो और देख लेते हैं। मीटिंग्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में दिया हुआ रेगुलेशन 18 to 26, ये पहली बात, 2 मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? क्वार्टर सर, क्वार्टर 3 months। 30 days। हाँ, लिखा क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द कमिटी बिफोर लैप्स ऑफ 30 days फ्रॉम द लास्ट मीटिंग, मतलब ओके। 30 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता 2 मीटिंग, ठीक है। और कम से कम एक मीटिंग एक क्वार्टर में होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, मान लीजिए सीओसी में एक मेंबर है जिसका 2% वोट शेयर है, अब वो ये कहता है जी मीटिंग कॉल कर लो, तो क्या आरपी कर सकता है? ये सुनो, एटलीस्ट 33% वोटिंग सेल्स रिक्वायर्ड। नहीं, अगर मान लो कोई 2% वाला है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सर कॉल कर लो ना, जरूरी मैटर है। Based on the signifies the matter. If the matter is significant, then the RP will be the call is on RP, sir. हाँ, क्या वर्ड लिखा? मे। Yes, sir. मे कन्वीन ए मीटिंग इफ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी
on request received from members of the committee. अब यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कमिटी में कोई परसेंटेज नहीं लिखा, लेकिन वर्ड क्या यूज कर लिया, मे। अगर वो जरूरी समझता है, चाहे जिसका 0.01% है, वो भी कह रहा है तो भी मीटिंग कॉल कर लेगा, आरपी को कोई रोकता नहीं है। लेकिन मैंडेटरी कब है, शैल कन्वीन ए मीटिंग। पहले में लिखा मे, दूसरे में लिख दिया शैल। शैल कब होगा, अगर 33% वोटिंग राइट्स वाले उसको कहेंगे तो। अगर 33% वोटिंग राइट वाले रिकमेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो उसको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। लेकिन 2% वाला करता है तो उसकी कॉल है कि वो करे या ना करे, उसको लगेगा जरूरी है तो कर ले। लेकिन 33% में उसको अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर तो उसको मीटिंग कॉल करनी ही करनी है। ठीक है। और मीटिंग कब तक कॉल करनी है, ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 2, it is clarified that meetings may be convened under this sub-regulation till the resolution plan is approved under subsection 1 of section 31 or order for liquidation is passed. ठीक है, या तो प्लान अप्रूव हो जाए या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाए, तब तक मीटिंग हो सकती है। लेकिन अब मान लीजिए आपने प्लान अप्रूवल के लिए दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो फिर जो मीटिंग होगी उनमें रेजोल्यूशन प्लान डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, and decide on matters which do not affect the resolution plan submitted before the adjudicating authority. A resolution professional may place a proposal received from members of the committee in a meeting. अच्छा, पहला तो हो गया कि मीटिंग कब कॉल करनी है। मीटिंग में क्या है, जरूरी समझे तब कॉल कर लो, या 33% बोले तब कॉल कर लो। Yes. सेकंड सिचुएशन है कि उसमें मीटिंग में भी तो प्रपोजल आते हैं ना। अगर एक आदमी ने कोई प्रपोजल दे दिया जिसका 2% वोट शेयर है, ठीक है, तो फिर आरपी का कॉल है, आरपी में प्लेस। लेकिन अगर 33% ने किया तो शेल। देखो दोनों वर्ड लिखे ना, में भी लिखा एक ही पैरा में और एक शेल भी लिखा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. चलिए, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। Mhm. अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो द कमिटी में डायरेक्ट द आरपी टू इनवाइट द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है रेरा में, उसको भी इनवाइट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट्स ऑन मैटर्स। ठीक है, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है रेरा में जो डिफाइंड है, उसको भी मीटिंग में कॉल कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट्स ऑन मैटर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मीटिंग के लिए नोटिस कितना देना है, Sir, maximum 5 days, minimum 24 hours. तीन पीरियड है। पहला पीरियड है नॉट लेस देन 5 days नोटिस। ठीक है, और नोटिस देना कैसे है, हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, लेकिन ईमेल पर तो जरूरी देना है। और ये जो 5 days का पीरियड है, इट में बी रिड्यूस टू नॉट लेस देन 24 आवर्स इफ इट डीम्स फिट। और अगर ए आ रहा है तो फिर 48। 48. ठीक है, चलिए, सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस के कैसे होगा, ये सारा दे रखा है कि हेडिंग मेल, मेल में हेडिंग क्या दोगे, ये साला, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। कंटेंट्स, कंटेंट्स में क्या दोगे आप, वेन्यू, टाइम और डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मीटिंग में कोई दूसरा बंदा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा आरपी को इन एडवांस, जो एआर जो आ रहा है, हु विल अटेंडेड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, और नोटिस ऑफ द मीटिंग में क्या रहेगा, पहला, देखो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिस पर डिस्कस करने होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिस पर वोटिंग करनी होती है, तो दोनों मैटर्स अलग अलग देंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन, एंड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट टू द मैटर टू बी डिस्कस्ड एंड द इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन एट द मीटिंग। अच्छा, ये जो नोटिस ऑफ मीटिंग है, ये किस किस को जा रहा है, ये सस्पेंडेड बोर्ड को भी जा रहा है या नहीं। Yes, sir. Suspended board. हाँ, हाँ, sir. पास्ट एम्प्लॉयज को जा रहा है,
Employees? No, sir. नोटिंग में क्या क्या रहेगा? नोटिस ऑफ द मीटिंग शेल स्टेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग। भाई वोटिंग अगर करनी है तो कैसे होगी, और टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कब वो वोट कास्ट कर सकते हैं, लॉग इन डिटेल्स, आइडेंटिटी, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें किससे कांटेक्ट करना है, ये सब चीजें इसमें रहेगी। कोरम कितना होगा? 33% of cells 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। voting rights. ठीक है, दे आर प्रेजेंट आइदर इन पर्सन और बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स। एक आदमी के पास 80% वोट शेयर है और वो अकेला ही वोटिंग मीटिंग में आया, तो हो जाएगी मीटिंग? Yes, sir. हाँ हाँ, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको देखना ही नहीं, आपको सिर्फ देखना है वोट शेयर। ठीक है, वोटिंग राइट्स है, और वोटिंग राइट किसके ऊपर बेस्ड है? वोट शेयर के ऊपर बेस्ड है। और अगर कोरम नहीं है तो फिर क्या होगा? इट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न एट द सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, और फिर वहां जो भी कोरम होगा वो हो जाएगा। चलिए, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कैसे कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है। आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां से पढ़ के बोल दो। सबसे पहले क्या करोगे काजल जी? आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, मीटिंग शुरू हो गई, लोग आ गए बैठे हैं, अब आप क्या करोगे? सर पहले कॉल करेंगे नेम सारे हाँ लोग। हाँ, तो सबसे जैसे टीचर होता है ना, क्लास में आता है तो टीचर Attendance. सबसे अटेंडेंस लेता है ना, तो रोल कॉल है ना। Hmm. भाई तुम्हारा देन नाम क्या है, तुम मेंबर हो या पार्टिसिपेंट हो, वेदर यू आर प्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, लोकेशन, अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही है तो कौन सी लोकेशन से पार्टिसिपेट कर रहा है, एजेंडा वेजेंडा मिल गया कि नहीं, ये सब क्यों? ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना कर सके कि जी मुझे तो एजेंडा ही नहीं मिला था। Hmm. इसीलिए यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। Okay, sir. ठीक है, और रोल कॉल हो गई, उसके बाद में क्या करेगा? सबको बता देंगे भाई कौन कौन प्रेजेंट है और कोरम कंप्लीट है या नहीं है। कोरम कंप्लीट हुए बिना मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, और ये कोरम पूरी मीटिंग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चला जाए बीच में से। Throughout the meeting. ठीक है, और कोई और दूसरा आ नहीं सकता उस मीटिंग में। और फिर मिनट्स भी आपको बनाने हैं, और मिनट मीटिंग हो गई आपकी, तो मिनट्स कब तक सर्कुलेट करने हैं आपको? 48 hours of the said meeting. अच्छा, ये Within 48 40. आवर्स मिनिमम है मैक्सिमम है? Within, sir, within. हाँ Maximum, sir. हाँ, मैक्सिमम। ठीक, चलिए, अब वोटिंग कैसे होगी कमेटी में ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये बस इसका आज यही समाप्त करते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एमवीएस कुमार जी, एनी क्वेश्चन? No, so far no. I'll just review it at my side and I can come back if anything. ओके ओके, समटाइम्स वी स्पीक इन हिंदी, तो उसमें कोई इश्यूज हैं आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आता है ओके मेरे लिए हिंदी, अच्छा हिंदी आता है। ओके 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 Not as like as you, but I can understand, I can ओके talk यू कैन all अंडरस्टैंड, this thing. यस यस, ओके। सो tomorrow there will be no meeting. Tomorrow you study on your own, and day after tomorrow there will be meeting, right? So I'll post the details in the group. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Good Right. night. Yes, sir.